Hello everyone. So today I'm going to start chapter 1 of class 8 science, that is crop production and management. The name of the chapter is crop production and management, and this is part first. So in this chapter what we will learn, we'll learn about the food, how food is produced on large scale, what is agriculture, what is crop. Okay, what are the agricultural practices for production of food? Okay, so we will learn everything step by step in this chapter. So let's start. So we'll see the introduction first. Every organism on the earth needs food. Energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. So, every organism on the earth needs food. As you know, we need food. All the animals surrounding us, every organism, okay, everybody needs food. And why we need food? We need food for various body activities, for our growth, for to perform various life activities like digestion, respiration, excretion, circulation. Okay, so to perform all these life processes, we need energy. And from where we get this energy? We get this energy from food. Okay, so we get our food from plants or animals or both. हमें अपना खाना मिलता कहाँ से है? We get our food from plants. Okay, we eat plants or plant products, and we get our food from animals. We eat animal products or animals also in some cases. Okay, so if everybody eats food, okay, and you know there is there sorry, so to provide food to everybody on a large scale, as there are so many people, okay, there is so much population on the earth, so we have to provide food to everyone. It is the government's duty, it is everyone's duty to provide food. Okay, so we have to produce the food on a large scale. ठीक है, हमें बहुत सारा food produce करेंगे, हम उस food को लोगों को अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, ताकि सबको फूड मिल सके. ओके, सो द रेगुलर प्रोडक्शन, proper management and distribution of food is very necessary. Okay, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अराउंड 130 crores and we have to provide food to all of them. So how we will provide food to them? Okay, so there are some practices by which we provide food to them, by producing food on a large scale, by proper management of that produce, okay, and by distributing that food properly. Okay, so food has to be produced on a large scale. ठीक है, to provide food to a large population, we have to produce food on a large scale. So how we will produce food on a large scale? Let's see. Firstly, we should know the meaning of agriculture. What do you mean by agriculture? So agriculture क्या होता है? Basically अगर हम हिंदी में बात करेंगे, it is खेती करना, फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग. जब हम फूड को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर की शुरुआत कब से हुई? पहले हम हिस्ट्री में देखते हैं, जो जब एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है, जब क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी, क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं की जाती थी, तब लोग खाना कैसे खाते थे, तब उन्हें खाना कैसे मिलता था. सो विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री. सो लॉन्ग टाइम अगो पीपल वर नोमैडिक. नोमैडिक का मतलब पता है आपको? नोमैडिक का मतलब होता है लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. मतलब वो घर नहीं बनाते थे जैसे हम अभी के अपने घरों में सेटल होकर रहते हैं. ऐसा नहीं होता था. लोगों को जहाँ खाना मिलता था वो वहाँ जाते थे, फिर वहाँ खाना खत्म हो जाता था, फिर वो दूसरी जगह पे अपना जो सेटलमेंट है वो कर लेते थे. ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नोमैडिक. ठीक है, जो घूमते रहते हैं, एक जगह पे बस सेटल नहीं होते हैं, बसते नहीं हैं. ओके, सो लॉन्ग टाइम अगो पीपल वर नोमैडिक. दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते रहते थे? किस लिए जाते थे? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान. ठीक है, तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर
घूमते रहते थे, वो एक जगह पे कभी भी सेटल नहीं होते थे, ठीक है। सो वो फूड की तलाश में इधर उधर जाते थे, और क्या होता था, दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। उनको जैसे वो मान लो जंगल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उनको ट्रीज दिखते हैं, तो ट्रीज पे क्या है, फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लेते थे। उस टाइम पे कोई कुकिंग नहीं होती थी, उनको पकाना आता नहीं था, ठीक है। उस टाइम पर क्या था, फायर भी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो ठीक है, इन्वेंट नहीं हुई थी फायर, तो उस टाइम पे कुकिंग भी पता नहीं था कि लोगों को होता क्या है। तो उस टाइम पे उनको जो मिलता था, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो ऐसे ही रो खा लेते थे, कच्चा खा लेते थे, उसको पकाते नहीं थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, एनिमल्स का शिकार करने लगे और उनको खाने लगे, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, बहुत पहले की, बिफोर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट डे की। अभी हम खाना कहाँ से लाते हैं, क्या हम अभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, खाना ढूंढते हैं, या फिर हम कुछ भी जो हमें मिलता है वो खा लेते हैं, या फिर आज का सिनेरियो डिफरेंट है। देखो, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, सो in present time we cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. This practice is called agriculture. तो आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, we cultivate land, हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं, जैसे जिसको हम फार्म बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं ना, खेत होता है जैसे, ठीक है। उसके अंदर हम क्रॉप्स लगाते हैं, मीन्स बहुत सारे प्रोड्यूस पैदा करते हैं, जैसे राइस लगाते हैं, वीट हो गया, ठीक है, और बहुत सारी पल्सेस हो गई, बहुत सारे फूड क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस को, फूड क्रॉप्स ग्रो करना, लार्ज स्केल में उनको प्रोड्यूस करना, ठीक है, इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर की शुरुआत बहुत टाइम बाद हुई थी। पहले लोग क्या करते थे, नोमैडिक थे, क्या करते थे, वो एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर फूड सर्च करते थे, ठीक है। उनको ऐसे ही खाना, उनको उस टाइम पे खाना बनाना नहीं आता था, ठीक है। धीरे 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 जैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, फायर इन्वेंट हुई, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, लोग खाना पकाने लगे, फिर क्या है, वो फसलें उगाने लगे, ठीक है। इस तरह से एग्रीकल्चर धीरे धीरे आ गया, ठीक है। सो अभी हमने एग्रीकल्चर की बात की, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, हम एग्रीकल्चर में प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं लार्ज स्केल पे। अगर आपने कोई फील्ड अगर देखा होगा, जो फार्म होता है, खेत होता है, अगर वो आपने देखा होगा, तो आप देखोगे एक बहुत बड़े फार्म में सिर्फ एक ही तरह की क्रॉप लगाई जाती है। जैसे अगर आप वीट फार्म देखोगे, वीट का जो फील्ड देखोगे, उसमें सिर्फ आपको गेहूं ही दिखाई देगा, ठीक है, वीट की क्रॉप दिखाई देगी। तो क्रॉप का मतलब यहाँ पे क्या है, जब एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, सारे प्लांट्स एक ही चीज के हैं, एक ही तरह के हैं सब प्लांट्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रॉप की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी होती है, तो क्या किया जाता है, एक ही तरह के प्लांट्स एक जगह पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इफ वी आर सेइंग प्लांट ऑफ व्हीट, व्हीट प्लांट, इसका मतलब क्या है, सिंगल प्लांट से है, ठीक है, ओके। अगर हम कह रहे हैं कि क्रॉप ऑफ वीट, ठीक है, वीट की क्रॉप की अगर हम बात करें, इट मीन्स एक पूरे फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सभी प्लांट्स किस चीज के हैं, वीट के हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वीट क्रॉप बोलेंगे, ठीक है, गेहूं की फसल। क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं हम फसल, ठीक है। सो क्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, वेरियस टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। जैसे सीरियल्स हम लगाते हैं, वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। और आपको पता है इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, जो इंडिया का टेम्परेचर है, अगर हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट में क्या क्या आता है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो विद इन इंडिया जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वेरी करती हैं। मीन्स जैसे आप नॉर्थ में अगर देखोगे, इन नॉर्थ यू विल सी अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्लाइमेट देन द साउथ, और इन द वेस्ट ऑल्सो यू विल सी अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ही सब जगह पे जैसे ही रीजन चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, तो क्लाइमेटिक
क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं, क्रॉप्स जो प्रोड्यूस की जाती हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। एक जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी, वहाँ की सॉयल के टेक्सचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल कैसी है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम राइस की क्रॉप की बात करें, पैडी जिसको हम बोलते हैं धान, ठीक है, अगर हम पैडी क्रॉप की अगर हम बात करें, सो इट इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन, ठीक है। सो रेनी सीजन में क्यों लगाई जाती है पैडी क्रॉप? बिकॉज पैडी क्रॉप नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। अब पैडी क्रॉप को क्या बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो उसको हम कब लगाएंगे? रेनी सीजन में, ठीक है। सो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, डिपेंड्स ऑन सीजन, ओके। सो क्रॉप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन। आई जस्ट टोल्ड यू दैट crops are grown based on the season. It depends on the season that which crop will be grown at a particular place. So जो crops होती हैं उनको हम divide कर लेते हैं two types में based on the season. So there are two types of crops based on the season, and these are kharif crops and rabi crops. Okay, first is kharif crops and rabi crops based on the season. So we'll see what are kharif crops. The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops, ठीक है। जो crops rainy season में लगाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं खरीफ crops, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया we were talking about the paddy crop, so it is grown in rainy season, so it is which type of crop? Kharif crop, okay. So the crops which are grown in rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. आपको पता है अगर हम इंडिया के अंदर बात करेंगे, इंडिया के अंदर रेनी सीजन कब होता है? इट इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। जून मिड में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, टिल सितंबर तक रेन्स होती हैं, ठीक है, तो जिसको हम मानसून सीजन बोलते हैं। सो उस टाइम पीरियड पर जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ओके। सो एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी जो राइस होते हैं, ठीक है, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. सो दीज आर खरीफ crops because these crops are grown in the rainy season. Okay, and next is रबी crops. Now we'll talk about the रबी crops. So रबी crops कौन से सीजन में लगाई जाती हैं? The crops grown in the winter season. ठीक है, जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें जो crops grow की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं रबी crops. So winter season इंडिया में कब होता है? That is October to March. रफली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. विंटर सीजन कब होता है? अक्टूबर टू मार्च होता है. सो the crops which are grown in October till March, okay, these crops are called rabi crops. Examples of rabi crops are wheat, गेहूं जो होता है हमारा, ग्राम चना हो गया, पी मतलब मटर, मस्टर्ड, ओके. सो मस्टर्ड क्या होता है? सरसों. आपने नॉर्थ में देखा होगा वहाँ पे जो विंटर सीजन होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे फार्म्स जो होते हैं, फील्ड्स जो होते हैं वो देखा होगा, येलो कलर के फ्लावर्स, बिल्कुल जो फील्ड्स होते हैं वैसे येलो दिखते हैं, ठीक है. तो वो क्या होता है? मस्टर्ड की क्रॉप होती है, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स based on the season. So there are two types of crops. First is kharif crop and second is rabi crops. Kharif crops are grown in the rainy season and rabi crops, if we'll talk about the rabi crops, these are grown in the winter season. Okay. देखो अभी हमने एग्रीकल्चर के बारे में देख लिया and now we know what are crops. Okay, so in this chapter what we have to study how crops are produced, how food is produced on a large scale. हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर मतलब खेती होती है, ठीक है. तो जो एग्रीकल्चर हम करते हैं इंडिया में या कहीं पे भी एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है, ठीक है. उन प्रैक्टिसेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है. सो द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं. सो व्हाट आर दीज प्रैक्टिसेस? See, cultivation of crops involves several activities. Okay,
सो दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन स्टेप्स को हम बोलते हैं, इन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो व्हाट आर दीज प्रैक्टिसेस? सो विल सी, फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जिस फील्ड में हमें क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, उस फील्ड के अंदर जो सॉयल है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन का मतलब है उस सॉयल को तैयार करेंगे जिससे कि उसके अंदर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। और फील्ड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, सॉयल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सॉयल को हम प्लो करते हैं। प्लो मीन्स सॉयल की जो लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर, उसको हम लूजन करते हैं। लूज क्यों करते हैं उसे? ताकि उसके अंदर जो वाटर है और एयर है वो अच्छे से पास हो सकें, ठीक है, जा सकें। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, सॉयल प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें सीड्स को सो करते हैं, मीन्स बीज बोते हैं। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं हम सोइंग के बाद। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड किए जाते हैं? सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और सॉयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है या जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, ठीक है, लास्ट क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद जो लास्ट क्रॉप लगाई थी उसने सारे न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, तो अभी सॉयल के अंदर क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। तो उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए सॉयल में हम उसमें क्या ऐड करते हैं? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? वाटरिंग द प्लांट। जैसे आपके घर में पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं, तो आप उसमें रोज पानी डालते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसी तरह से फील्ड के अंदर भी जो क्रॉप्स को पानी देने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उनको वाटर प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। एंड वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर आप पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? जो सारे के सारे प्लांट्स हैं, पूरी की पूरी क्रॉप जो होगी वो सूख जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, सो ऑल द स्टेप्स आर वेरी नेसेसरी। आप अगर एक भी स्टेप को छोड़ देंगे तो आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ स्टेप, इरिगेशन। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द क्रॉप। कई बार आपने सुना होगा जंगली घास आ गई फील्ड के अंदर। वो क्या होता है? देखो, सपोज वी हैव ग्रोन वीट क्रॉप, हमने वीट क्रॉप ग्रो की है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं जो वीट नहीं है। ठीक है, और वो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स। हमको नहीं चाहिए वो प्लांट्स, ठीक है, वो अपने आप ग्रो कर गए, ठीक है, हमने नहीं लगाए उनको। ठीक है, सो दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स। सो अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। तो इन वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है या फिर इनको मारना पड़ता है, ठीक है, हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो हम क्रॉप्स को क्या है? वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। और किस तरह से हम वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं? और अगर हम वीड्स से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे या वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम ये सभी स्टेप्स आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस स्टेप रिमूवल ऑफ वीड्स, जब हम वीड्स को रिमूव कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल की कटाई करना। जब आपकी क्रॉप फुली ग्रो हो जाती है, पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसको काटा जाता है। ठीक है, उसकी कटाई की जाती है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टोरेज। ठीक है, अब हमने क्रॉप को काट लिया, उसके सीड्स, जैसे अगर हम वीट क्रॉप की बात कर रहे हैं, उसके सीड्स अलग कर लिए, उसके बाद हम अब क्रॉप को क्या करेंगे? जो सीड्स हैं, वीट सीड्स को हम क्या करेंगे? उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो स्टोरेज की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो वेस्ट भी हो सकती है। जो भी पूरी की पूरी क्रॉप है, वो जो ग्रेन्स हैं वो सब खराब हो सकते हैं। सो स्टोरेज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, नाउ विल स्टडी ऑल दिस स्टेप इन डिटेल। सो फर्स्ट स्टेप वाज
प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। हमारा पहला स्टेप क्या था? सॉयल को प्रिपेयर करना। सॉयल को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें एक फार्मर है, ठीक है, बुलॉक्स है, और वो क्या कर रहा है, बीच में एक लकड़ी का, वुड का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं, उस टूल को हम बोलते हैं प्लो, ठीक है। तो देखो हम पहले प्लो को देख लेते हैं। लेट मी जूम इन दिस, सी, हाँ, ठीक है। सो दिस इज अ प्लो। तो प्लो के अंदर जो सबसे मेन पार्ट होता है, दिस वन, ठीक है, ये आपको ब्लेड जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लो शेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये मिट्टी के अंदर जाता है, ठीक है। जब हम प्लोइंग करते हैं तो प्लोइंग के प्रोसेस में ये जो पार्ट है ये यहाँ पर है मिट्टी के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज प्लो शाफ्ट, ठीक है। प्लो शाफ्ट आपका ये वाला पार्ट है इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला जो वुड का लोग दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बीम। इसको हम बोलते हैं बीम, ओके। सो अब देखते हैं हम प्लो क्या होता है, प्लो किस काम आता है। देखो, सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। सॉइल प्रिपेयर हम कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है सॉइल को प्रिपेयर करना, किस तरह से सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं। सी, सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है सॉइल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, ठीक है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल के अंदर रहते हैं। आपने अर्थवॉर्म्स के बारे में सुना होगा। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है। एंड यू नो जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करती है? सॉइल से एब्जॉर्ब करती है ना। तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, मिनरल्स, air and some living organisms like insects, okay. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organism, ठीक है। अब सॉइल के अंदर अगर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो मरते भी होंगे, या कुछ और डेड प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स भी होते हैं कई बार मर जाते हैं, वो सूख जाते हैं, तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्राउंड पे गिर जाती हैं। तो जो वो लीव्स ग्राउंड पे गिर जाती हैं, ठीक है, डेड लीव्स जो होती हैं, और कुछ डेड इंसेक्ट्स या डेड एनिमल्स होते हैं जो ग्राउंड पर गिर जाते हैं, तो उन पर कौन एक्ट करते हैं? उन पर डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं कुछ। वो क्या करते हैं? उन डेड ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे 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 पीसीज में ब्रेक करके उनको सॉइल के अंदर ही मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर देते हैं। जो बैक्टीरियाज वगैरह जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स जो डीकम्पोजर्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं। तो जैसे ही कुछ डेड प्लांट और एनिमल उनको दिखता है, या डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सॉइल के ऊपर, वो उनको कंप्लीटली डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? जो लिविंग मैटर होता है, जैसे हम हैं या कोई भी इंसेक्ट है, जब वो मर जाता है तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब वो डिकम्पोज होके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज हो गए तो क्या होगा? वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और यही न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आपने सुना है ना, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनको प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर क्या होता है, दोबारा से जब प्लांट्स की लीव्स मर जाती हैं, प्लांट डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाते हैं, फिर दोबारा से ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फिर जो सॉइल के अंदर मिक्स होने के बाद दोबारा से क्या होता है, प्लांट्स की रूट्स उसको यूज करती हैं। इस तरह से ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये चलती रहती है, ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप,
सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखो सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हुए और सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रीस्टोर हो गए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो सॉयल होती है, सॉयल की एक जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट फर्टाइल लेयर। ठीक है, उसी लेयर के अंदर टॉप मोस्ट लेयर में ही प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो सॉयल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें ऊपर तक लाना है, तो सॉयल को हम क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। लूज कैसे, उसको ऐसे प्लो से, जैसे आप सॉयल के अंदर आप कोई नुकीली चीज डालोगे प्लो से, तो वो सॉयल के नीचे वाली क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो टर्न हो रही है और सॉयल लूज भी हो रही है, जैसे हार्ड होती है ना पानी की वजह से, या बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, लूज कर देते हैं, उसको टर्न कर देते हैं प्लो की हेल्प से। ठीक है, तो प्लो का काम क्या होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉयल। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है अगर हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है तो, बिकॉज जो क्रॉप्स हैं उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे, सॉयल के जो न्यूट्रिएंट्स, सॉयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्रॉप्स तक कैसे पहुंचेंगे, जब हम सॉयल को टर्न और लूजन कर देंगे। ठीक है, सो दिस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, and the process of loosening and turning of the soil is called tilling और प्लोइंग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, देखो प्लो का हम यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, प्लोइंग। ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो है इसको हम टिलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एंड प्लोइंग और टिलिंग इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लो अभी आपने देखा ही है। ठीक है, तो प्लो की हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं और टर्न करते हैं। ठीक है, जिससे जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर तक आ जाए, मीन्स जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स की जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को इजीली अवेल कर लें। ठीक है, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉयल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉयल को टर्न अप कर रहे हैं, लूजन अप कर रहे हैं, मीन्स वी आर प्लोइंग द सॉयल। तो सॉयल को प्लो करने के लिए, सॉयल को टर्न अप और लूजन अप करने के लिए हम कुछ इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो विल नाउ लर्न अबाउट दोज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सो फर्स्ट इज प्लो। प्लो के बारे में अभी हमने पढ़ा है, एक बार और देखते हैं। सो व्हाट इज अ प्लो, यहाँ पे आपको सेम पिक्चर दिखाई गई है। सो दिस इज मेड ऑफ वुड से बना हुआ होता है, एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, मीन्स उस प्लो को खून चलाते हैं बुल्स, जो बैल होते हैं, बैल का जो पेयर होता है, पेयर ऑफ बुल्स। ठीक है, उससे उसको वो फंक्शन में लाते हैं। ठीक है, सो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। ठीक है, ये हो गया प्लोशेयर। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज शाफ्ट। ओके, ये है हमारा प्लो शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड बीम। बीम को कहाँ रखा जाता है, इट इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, बुल्स की नेक पर रखा जाता है। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। अब जैसे जैसे बुल्स आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो हमारा प्लोशेयर है वो मिट्टी को ऐसा क्या करता रहेगा, खोदता रहेगा, डिग करता रहेगा, और जो सॉइल है वो क्या होती रहेगी, लूजन अप होती रहेगी। ओके, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड हो। इसको हम क्या बोलते हैं, हो। तो आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, अगर आपने कभी फार्म देखा है या आप फार्मिंग एग्रीकल्चर से थोड़ा भी रिलेट करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, फावड़ा। ठीक है, फावड़ा आपने देखा होगा, जिसके अंदर एक क्या है, लकड़ी का एक लॉग होता है, डंडा हम बोल सकते हैं वो होता है, और उसके नीचे कॉर्नर पे एक आयरन का ब्लेड लगा हुआ होता है। ठीक है, और उस ब्लेड से हम उस जो हमारा रॉड है उसको हम पकड़ते हैं, जो लकड़ी का रॉड होता है, लकड़ी का जो लॉग होता है उसको हम पकड़ते हैं, और जो आयरन का प्लेट होता है उसको हम ऐसे मिट्टी में मारते हैं तो वो मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्या होता है, हो होता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, दिस इज द प्लेट। ये क्या है, मेटल की प्लेट होती है जिसको आप
इसको यहाँ से आप अगर इसको पकड़ते हैं, पकड़ के अगर आप इसको मिट्टी में जब आप इसको मारते हैं तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये आपका सॉइल के अंदर जाता है, ठीक है। तो उससे आप फिर उसको जैसे ही ऊपर की तरफ आप पुल आउट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जो आपकी मिट्टी है वो बाहर की तरफ आती है। इस तरह से जो आपकी सॉइल है वो लूज हो जाती है, टर्न हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको भी किस में इस्तेमाल करते हैं, प्लोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है, वीड्स को रिमूव करने के लिए, वीडिंग के लिए, ठीक है। जो वीड्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, तो उन प्लांट्स को रिमूव करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। रोड होती है, वुड की भी हो सकती है और वो आयरन की भी हो सकती है, ओके। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। एक सिरे पर उसके एक आयरन की प्लेट होती है, बेंट प्लेट होती है, ठीक है, और वो ब्लेड की तरह काम करती है, ओके। इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स, हम उसको बाय हैंड मैनुअली भी पुल कर सकते हैं और एनिमल्स भी इसको पुल करते हैं, अलग अलग डिजाइन से ये आता है, ठीक है। जो एनिमल्स जिसको पुल कर सकते हैं दैट हैज अ डिफरेंट डिजाइन, और हम मैनुअली जिसको यूज करते हैं उसमें जस्ट एक ये रोड होती है, उसमें ये ग्रिप और हैंडल नहीं होता है, ठीक है। तो जो एनिमल्स यूज करते हैं उसमें एक ग्रिप और हैंडल होता है, ठीक है। सो इट हैज डिफरेंट डिजाइन बेस्ड ऑन हु इज यूजिंग इट, ओके। सो विल सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपने किसी को फार्मिंग करते हुए, खेती करते हुए देखा है, या आपके घर में कोई फार्मिंग करता है, तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है सॉइल को लूजन अप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या है, ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज द ट्रैक्टर, और यहाँ पे पीछे कुछ लगा हुआ है ना, उसमें क्या है, ब्लेड्स है, ठीक है। जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करेगा वैसे वैसे ब्लेड्स क्या करते रहेंगे, सॉइल को लूजन अप करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी सोयल को प्लो किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फास्टेस्ट मेथड फॉर प्लोइंग यूज्ड, ठीक है, सबसे कम मेहनत लगती है इसमें, ओके। एंड दिस इज द फास्टेस्ट मेथड, मॉडर्न मेथड है। सो नाउ अ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, सो दिस इज कॉल्ड कल्टीवेटर, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं। और इसको कौन ड्राइव करता है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे इसे बांध देते हैं, और जैसे ही ट्रैक्टर ड्राइव करते हैं तो ये कल्टीवेटर भी साथ के साथ काम करता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, हमारी मेहनत भी बचाता है और हमारा समय भी बचाता है ना। आगे देखो, दैट स्टेप वाज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमारी सॉइल प्रिपेयर हो गई है, हमने सॉइल को प्लो कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है, टर्न अप कर दिया। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब सॉइल के अंदर सीड्स को सो करेंगे, सीड्स बीज बोएंगे ना, तो बीज बोने से पहले हमारे पास सीड्स होने भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो जो सीड्स होते हैं उसमें से बेस्ट सीड्स सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसके जो सीड्स वेस्ट हैं, जो बेस्ट नहीं हैं, उनको हम अगर सो करेंगे तो हमारी वो जगह वेस्ट हो जाएगी। सो व्हाट वी डू, हमारे पास जो सारे सीड्स होते हैं उसमें से हम बेस्ट सीड सेलेक्ट करते हैं। तो बेस्ट सीड्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये आप भी कर सकते हो, इट इज़ अ वेरी इजी एक्टिविटी। देखो आपको करना क्या है, टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर, ठीक है। आपको एक बर्तन लेना है और उसके अंदर पानी से उसको आधा भर देना है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, ठीक है, इट कैन बी अ ग्लास, इट कैन बी अ बकेट, एनीथिंग यू कैन टेक, ओके। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, ठीक है। आपको उसमें व्हीट सीड्स, जो गेहूं के दाने होते हैं, आप कोई भी सीड्स यूज कर सकते हो, कोई दाल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उसमें जैसे आधी मुट्ठी आपने लिया, ठीक है, और उस पानी के अंदर आपने डाल दिया, उसको अच्छे से स्टिर कर दिया, हिला दिया, ठीक है, स्पून से। तो उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है। जब आप थोड़ी देर के बाद उसको देखोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कुछ सीड्स जो होंगे वो पानी पर ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सीड्स विल बी एट द बॉटम, मतलब वो सिंक करेंगे, ठीक है, फ्लोट नहीं करेंगे। लेकिन उसमें से कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे,
फ्लोट कर रहे होंगे, पानी के ऊपर तैर रहे होंगे। सो जो सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीड्स खराब होते हैं, ठीक है। और जो सीड्स नीचे सिंक कर जाते हैं, जो बॉटम पे बैठ जाते हैं, दीज आर द बेस्ट सीड्स। इस तरह से जो पानी पे फ्लोट कर रहे हैं उन सीड्स को आप अलग कर दोगे, और जो पानी के अंदर बैठ गए हैं, जो बॉटम में है, उन सीड्स को आप यूज कर दोगे। दीज आर द बेस्ट क्वालिटी सीड्स। ओके, सो दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इजी। आप भी इजीली बता सकते हो कि कौन से सीड्स अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। जो सीड्स बैठ जाएंगे नीचे, सिंक कर जाएंगे, दो सीड्स आर हेल्दी सीड्स, एंड दोज द सीड्स विच विल फ्लोट ऑन द वाटर, दीज सीड्स आर अनहेल्दी। ओके ओके, so now we have selected the seeds. Now what we will do, we will sow them. अब हम उन्हें क्या करेंगे, सीड्स को बोएंगे, ठीक है, फील्ड्स में सो करेंगे। सो सीड्स को सो करने के लिए भी, सीड्स को बोने के लिए भी हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के, दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया हुआ है टूल्स को। दीज आर ट्रेडिशनल टूल्स एंड सीड ड्रिल, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल मतलब कि पुराने समय में या फिर आजकल के टाइम में भी बहुत सारे गाँव में जहाँ पे एडवांस मॉडर्न मेथड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, पुराने मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल टूल, पुराने समय का, ठीक है। और आजकल के टाइम में जो टूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ सीड ड्रिल, ठीक है, दैट इज़ अ मॉडर्न टूल। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टूल के बारे में देखते हैं, मतलब पुराने टाइम में किस तरह का टूल यूज़ किया जाता था सीड्स को सो करने के लिए। सो हेयर वी गो, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या होता है, दिस टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। यहाँ पे आपको एक फनल दिख रही होगी, ठीक है, फनल की शेप दिख रही है ना, वेट ए मिनट, या ये आपको एक फनल दिख रही है, ठीक है, फनल की शेप है, ठीक है। तो इस फनल के अंदर सीड्स को डाला जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। और जैसे ही हम नीचे आते हैं, ये फनल के, ये देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, लोग ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक वेसल के जैसे, पाइप के जैसा है ना, ठीक है। तो ये पाइप है और एंड में इसके क्या होती है, इस तरह से ये मिट्टी के अंदर जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये बुल्स जो है आगे बढ़ते जाएंगे और ये जो पीछे कोई है फनल के अंदर ऐसे सीड्स डालता रहेगा, तो वो सीड्स डायरेक्टली मिट्टी के अंदर जाते रहेंगे, ठीक है। कुछ सीड्स कई बार क्या होता है ऊपर भी रह जाते हैं, पूरे अंदर वो जाते नहीं है, सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। सो एक बार हम रीड कर लेते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल की शेप होती है इसकी। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, ठीक है। पाइप होती है और पाइप के एंड में क्या होते हैं, शार्प एंड्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं। दीज एंड्स पीस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ओके, तो ये जो शार्प एंड्स होते हैं ये सॉइल को चीरते जाते हैं और उसके अंदर सीड्स को रखते जाते हैं। तो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। अब हम देखते हैं मॉडर्न मेथड के बारे में। आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो सीड्स कैसे सो किए जाते हैं। सो सीड्स आर सोन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ सीड ड्रिल। तो हम इसमें देखते हैं क्या होता है। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। इसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स के साथ बांध देते हैं। यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर हम लगा देंगे आगे, इसको यहाँ से अटैच कर देते हैं ट्रैक्टर के साथ, ठीक है। तो ट्रैक्टर्स के पीछे इसको अटैच कर देते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। देखो अब इसके अंदर कितने सारे ये शार्प एंड्स बने हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इस तरफ भी 5 एंड्स हो गए। तो इतने सारे पाइप्स बने हुए हैं। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है वैसे वैसे सीड्स जो हैं इनके अंदर से क्या है, मिट्टी के अंदर जाते रहते हैं, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंसेस पर सो किए जाते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में जो एंड्स बने हुए हैं ये क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे बने हुए हैं। इससे क्या होगा, जो सीड्स हैं, जो सीड्स मिट्टी के अंदर जाएंगे वो भी इक्वल डिस्टेंसेस पे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज़्यादा सीड्स चले गए और कहीं पर एक भी नहीं गया या बहुत कम गए। तो उस केस में क्या होगा, कहीं पर तो बहुत भीड़ हो जाएगी प्लांट्स की जब वो ग्रो करेंगे, और कहीं पर
प्लांट्स ही नहीं होंगे. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. हमें क्या करना है, जो हमें जो क्रॉप लगानी है, द सीड्स मस्ट बी सोन एट प्रॉपर इंटरवल्स. ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए हर सीड के अंदर, ताकि जो हर प्लांट है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ ग्रो करे. ठीक है, तो इस तरह से आजकल के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, सीड ड्रिल यूज करते हैं. ओके, सो दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो सीड्स सो कर दिए जाते हैं उसके ऊपर सॉइल अपने आप कवर हो जाती है, क्योंकि ट्रैक्टर मूव कर रहा है तो वो सॉइल को भी ऊपर कवर करता जाएगा. तो इससे क्या होगा, जो सीड्स हैं वो ऊपर नहीं दिखाई देंगे, वो सॉइल के अंदर हैं. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जो कुछ सीड्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स उन सीड्स को देखते हैं और खा जाते हैं, तो ग्रो होने से पहले ही वो सीड्स चले जाते हैं. तो सीड ड्रिल में क्या होगा, जो सीड्स होते हैं वो एक प्रॉपर डेप्थ, मतलब एक प्रॉपर गहराई में जाते हैं सीड ड्रिल के थ्रू, जिसकी वजह से वो ऊपर एक्सपोज नहीं होते, ग्राउंड के ऊपर नहीं दिखते हैं. इससे क्या होता है, इट प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. ठीक है, अगर हम सीड ड्रिल से सीड्स को सो करेंगे तो क्या होगा, इट विल सेव अवर टाइम एंड लेबर. हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी मेहनत भी बचेगी. सो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल ओवर ट्रेडिशनल टूल, देन व्हाट यू विल राइट, इट विल सेव आवर टाइम एंड लेबर. अगर हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा एंड इट विल सेव आवर लेबर ऑल्सो. ओके, हमारी मेहनत भी बचेगी. ओके, अब देखो ये आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन. बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है वो हम देखते हैं. देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो सीड्स हैं वो मिट्टी के अंदर सो किए जाते हैं, फिर वो सीड्स जर्मिनेट होते हैं, उनमें से पौधा, छोटा सा पौधा निकलता है जिसको हम सैपलिंग बोलते हैं. ठीक है, फिर वो जो सैपलिंग है वो बड़ा होता है, वो एक प्लांट बन जाता है. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो सीड्स हैं वो मिट्टी में नहीं बोए जाते हैं. ठीक है, तो उस केस में जो प्रोसेस यूज होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, सीड्स को एक छोटे से एरिया में पहले एक नर्सरी बेड बना लिया जाता है, जिसमें सॉयल मिनरल्स वगैरह सब डाले जाते हैं, तो वहाँ पे उन सीड्स को ग्रो कर दिया जाता है. जब वो सैपलिंग्स बन जाते हैं, मतलब वो जब थोड़े से ग्रो हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, तब उन पौधों को रूट्स के साथ निकाल कर फिर उन छोटे पौधों को, सैपलिंग्स को फील्ड में ग्रो किया जाता है. ठीक है, सीड्स ग्रो नहीं किए हैं हमने. सीड से जब एक प्लांट, मतलब सीड्स जर्मिनेट हो गया, उसमें से एक प्लांट इमर्ज आउट हुआ, प्लांट बन गया छोटा सा, उस प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, सॉयल के अंदर डाल रहे हैं, मतलब उसको फिर उस प्लांट्स को हम लगा रहे हैं. ठीक है, बीज नहीं बो रहे हैं हम. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, हम देख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ प्लांट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट हैज बीन ग्रोइंग एंड रीप्लांटिंग इट इन अनदर प्लेस. तो क्या होता है, एक प्लांट जहां पर ग्रो कर रहा है, ठीक है, वहां पे वो ग्रो कर रहा था, वहां से हमने उसे रिमूव कर दिया. ठीक है, और फिर उसको क्या किया, दूसरे जगह पर जाके उसे रीप्लांट कर दिया. ठीक है, दूसरी जगह, व्हाट इज द सेकंड प्लेस हियर, दैट इज द फील्ड. ठीक है, पहले वो प्लांट हमने, वो सीड्स को हमने कहाँ लगाया था, नर्सरी बेड पर लगाया. एक छोटी सी स्पेस बना लेते हैं जिसको हम नर्सरी बेड बोलते हैं, वहां पे वो सीड्स ग्रो कर देते हैं. जब वो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, उन प्लांट्स को हम वहां से रूट्स के साथ निकाल लेते हैं और फिर हम उनको फील्ड के अंदर क्या कर देते हैं, रीप्लांट कर देते हैं, दोबारा से उसे प्लांट कर देते हैं. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो इसके बैग में छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी ग्रो किए गए हैं. ठीक है, वो प्लांट्स उसके ओरिजिनल प्लेस से, जहाँ पे वो ग्रो किए गए थे, जहाँ पे सीड्स बोया गया था, वहाँ से वो प्लांट्स लिए. ठीक है, और फिर उनको फील्ड में ग्रो किया जा रहा है. ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स को फील्ड में ग्रो किया जा रहा है. तो ये जो प्लांट है, दिस इज द, ये किस चीज़ की क्रॉप है, दिस इज पैडी क्रॉप.
आपने धान सुना होगा, धान की जो फसल होती है पैडी, जिसमें से चावल निकलते हैं ना, तो ये पैडी की क्रॉप है। और जब वो बड़ा हो जाएगा पौधा तो वो इस तरह से दिखेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें से आपके जो राइस होते हैं, राइस के सीड्स होते हैं, वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसप्लांटेशन। इसको भी हमने सीड्स के सोइंग ऑफ सीड्स में ही पढ़ा है। ठीक है, so now we'll see some questions. So first question is, the same kind of plants that are grown and cultivated on a large scale at a place is called same kind of plants produced on a large scale, that is called a crop, crop. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट ब्लैंक क्या है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉयल, व्हाट वी डू, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल। सी, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, जो डैमेज सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, पानी के ऊपर क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे। ओके, डैमेज सीड्स वुड float on top of the water. Next is, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सनलाइट, और सॉयल से उसे क्या क्या मिलेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. इट विल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द soil. Okay. So students, that's all for today, and in this part we have studied about first two agricultural practices, that were preparation of soil and sowing of seeds. बाकी की जो agricultural practices हैं, like manuring and fertilizing, adding manures and fertilizers, irrigation, storage, harvesting, all these agricultural activities we'll see in the next part. Okay. And if you have any doubt or any query, then you can write to me in the comment. That's all for today. Thank you. Take care.